Good morning, Prisha. Tanishka and Prisha, can we start? Yes, ma'am. Yeah, Krish is also Ma'am. okay. We were doing from the NCERT. Let's continue with the same. Only 3 students are there. I think they will join a little bit late, है ना? Any doubt regarding the previous sessions? You want to discuss anything? No? No, ma'am. Okay, fine. चलिए. Let's start then. I'm going to Krish Goel. Click at the option start video. Krish Goel beta, start at the option start video. Click at the option start video. Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. I'm just going to revise little bit what we have done in the previous session. First, we have done qualitative characteristics. In that, first we have done reliability. It means the accounting information should be such that the user can rely on it. How he can rely? When the information is free from error and biasness. Next is relevance. The information is said to be relevant when it is available to the user in time, so that he can predict about the future depending on the past and present performance. Then is understandability. Understandability means that the user understands the information in the same way which the sender wants to convey. Then comparability. The accounting information should be prepared in such a way that we can compare one entity with the another entity, or we can compare an entity over different time period. Now, next topic we are going to do is objectives of accounting. So here it's written, I'm going to Acha, in your opinion, can you tell me anything why we do accounting? That what are the objectives of accounting? Let's discuss with you all. Now we are 4. Yes. 5. Utsav is also there. Okay. Just tell me any objective of accounting. Okay. First we will switch over to Prisha. Prisha, कोई भी एक objective बताइए. क्या objective है accounting का? हम क्यों करते हैं accounting? Ma'am, so that our information is conveyed to the users and हाँ ठीक है, गुड. हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे जो यूजर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनको हम इंफॉर्मेशन दे पाए. हाँ, तनिष्का, एनी अदर ऑब्जेक्टिव? मैम अपनी कंपनी के बारे में हमें पता चले कि वो प्रॉफिट में है, लॉस में है. So that we came to know whether our company is earning profit or loss. ठीक है. Krish, any other benefit? मैम हमें हमारे रिकॉर्ड्स हमारे पास रहेंगे.
हाँ, Easy होगा सो वो। दैट हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि सो दैट वी कैन रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ताकि हमें खुद को पता हो क्या बिजनेस में आया है, इन हुआ है और क्या आउट हुआ है। मनप्रीत, कैन यू गिव एनी अदर पॉइंट? Yes, Manpreet, can you give any other point? No, ma'am. Okay, Utsav. Utsav, any point in your mind? Okay, let's come. Objectives of accounting. As an information system, the basic objective of accounting is to provide useful information to the interested group of people, both external and internal. जैसे कि प्रीशा ने बताया था, अकाउंटिंग सिस्टम का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है यूजर्स को। जब हम यूजर्स की बात करते हैं तो इसमें दोनों यूजर्स आते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। The necessary information, particular in case of external users, is provided in form of financial statement. अब एक और नई चीज है आपके लिए, एक्सटर्नल यूजर को इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, बाहर के लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है एसेट्स या लायबिलिटीज। Beside these, the management is provided with additional information from time to time from the accounting records of business. Thus, the primary objective of accounting include the following. तो ये है हमारे main objectives accounting के। सबसे first, जो कि आप में से किसी एक ने बताया था, maintenance of record of business transaction. उसने कहा कि अकाउंटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि हम सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। Accounting is used for the maintenance of a systematic record of all the financial transaction. Systematic का मतलब क्या होता है? जिस दिन जो इवेंट हुई है उसी दिन रिकॉर्ड करना है, with the date also. आगे जाके बेटा हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, न्यूमेरिकल्स में अगर हमने लिखा है कि परचेज मशीनरी ऑन 1 मार्च 2018, तो उसके ऊपर हमने डेट स्पेसिफाई करनी है 1 मार्च। फिर हमने लिखा है परचेज गुड्स ऑन 2 मार्च, तो डेट लिखनी है 2 मार्च। दैट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द डेट ऑल्सो। Even the most brilliant executive or manager cannot accurately remember the numerous number of varied transactions. उसने कहा है कि हमें अकाउंटेंसी में लिखना बहुत जरूरी है कि कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट होगा, लेकिन हम सबकी सब ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकते। कैसी ट्रांजेक्शन्स होती है? परचेज, सेल, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब हमारे पास पैसा आ गया, पेमेंट मतलब हमसे पैसा चला गया। दैट टेक प्लेस इन द बिजनेस every day. Hence, a proper and complete record of all the business transactions are kept regularly. Moreover, the recorded information enables verifiability and act as a evidence. हाँ, उसने कहा है कि अगर हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए आती है, एविडेंस के लिए। अगर हमारे पे ऊपर कोई केस कर देता है तो हमने हर चीज लिखी है, हम उनको दिखा सकते हैं कि आपसे हमने ये चीज इतने की खरीदी थी, उस पे इतना टैक्स था, इतना लेस था। तो उसने कहा है कि रिटन डॉक्यूमेंट हमेशा सपोर्ट करता है एट द टाइम ऑफ एविडेंस। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? कि हमें हर चीज को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अगर हम सोचे कि हम याद कर लेंगे तो ही से कोई भी पर्सन इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो हर चीज को याद कर ले। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं और हमें हर चीज को लिखना है, स्पेशली क्योंकि लिखने से वो चीज क्या बन जाती है? एज अ एविडेंस। ठीक, अगला है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। The owner of the business are keen to have an idea about the net results of their business operations periodically. उसने कहा जो बिजनेस के ऑनर्स होते हैं ना, उनका हमेशा इंटरेस्ट किस में होता है कि वो हमेशा उत्सुक होते हैं, कि मतलब हमेशा उत्सुक होते हैं अपने बिजनेस के रिजल्ट्स जानने के लिए। रिजल्ट्स मतलब क्या उनको प्रॉफिट हुआ है, whether the business has earned profit
नीचे पढ़ रही हूं मैं, और इंकर्ड लॉस, वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। 10 Another objective of accounting is to ascertain the profit earned or loss sustained by the business during an accounting period. इसलिए उसने कहा एक और ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें पता लगाना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, which can be easily worked with the help of record of income and expenses. उसने कहा है कि हमें प्रॉफिट तभी पता चलेगा जब हम इनकम भी लिखेंगे और एक्सपेंसेस भी लिखेंगे। अगर इनकम ज्यादा होंगी तो प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो लॉस होगा। रिलेटिंग टू द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। अब उसने कहा है कि इनकम और एक्सपेंसेस हम लिखेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब ये सारे नोट कर लीजिए कहीं पे रफ कॉपी पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। उसने कहा प्रॉफिट क्या बताता है, प्रॉफिट इंडिकेट करता है कि हमारी इनकम ज्यादा है, हमारे खर्चे कम है। जैसे कि उसने एग्जांपल दी है, इफ द टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब बेटा इनकम होती है, इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ गिवन पीरियड इज 6 लाख, अगर टोटल रेवेन्यू 6 लाख है एंड टोटल एक्सपेंसेस 5,40,000 और खर्चे 5,40,000 है, तो इट मींस हमारी रेवेन्यू ज्यादा है। जब रेवेन्यू ज्यादा होती है तो होता है प्रॉफिट। फिर से देखिए, रेवेन्यू दिया है 6, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम 6 लाख है, एक्सपेंसेस 5,40,000 है। पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन बड़ा है, रेवेन्यू बड़ा है, इसलिए हमें क्लियर हो गया कि हमें इनकम है, कितनी इनकम है दोनों को माइनस करके। If, however, the total expenses exceed the total revenue, उसने कहा है अगर खर्चे ज्यादा होते, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होते, द डिफरेंस रिफ्लेक्ट द लॉस। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो हमें इसमें क्या पता चला है कि जो हर बिजनेसमैन होता है वो इंटरेस्टेड होता है, वो कीन होता है कि मुझे अपने कंपनी के बारे में पता चले कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसलिए वो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दो चीजें लिखते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम को रेवेन्यू भी बोलते हैं। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होता है, अगर आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा है तो हमें लॉस होता है। ठीक है, हाँ जी, एनी डाउट? उत्सव, एनी डाउट? उत्सव, तनिष्का, प्रीशा, एनी डाउट बेटा? नो मैम। ओके, हाँ जी बेटा, एक बार ये चार्ट देख ले। ये चार्ट तो वैसे ना कैरेक्टरिस्टिक्स का है। ये देखिए नीचे लिखा है ना क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ही हमने पढ़ा है। देखो क्या लिखा है, मैं एक बार दिखा रही हूँ, चार्ट रीड कर रही हूँ, फ्लो चार्ट रीड कर रही हूँ। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हमने पढ़ा था कि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका मेन काम क्या है, वो हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। उसके बाद उसने कहा है कि डिसीजन मेकर्स, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं ताकि हम डिसीजन ले सके। अब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कब करेंगे, जब उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 4 चीजें होंगी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, हम उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डिसीजन यूजफुल, डिसीजन यूजफुल कब होगा, जब वो रेलेवेंस होगी। रेलेवेंस मतलब मुझे टाइम पे मिलेगी, देखो टाइमलीनेस लिखा है। वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए। अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में, तो उसको समय पे प्रॉफिट पता चले, रेलेवेंट होनी चाहिए, टाइम पे मिले उसे। रिलायबिलिटी क्या है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन हो जिसपे उसे फेथ हो, जो वेरीफाइबल हो। वेरीफाई हो मतलब ये वो वेरीफाई कर सके, उसमें उसके साथ रिसिप्ट भी लगी हो। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक मशीनरी खरीदी है 50,000 की, तो आप जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं ना बेटा, तो आपको 50,000 का बिल भी लगाना है। वो बिल क्या होता है, वेरीफाइबिलिटी। तो उसने कहा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल तब होगी जब हम उसको क्रॉस चेक भी कर पाएंगे। एक तो हमें विश्वास होगा, फेथफुलनेस मतलब हम उस पर विश्वास कर सकेंगे ये सही है, और सही कैसे मानेंगे, जब उसके साथ उसका बिल होगा। तो उसने कहा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, टाइम पे मिले। रिलायबिलिटी मतलब कि हम उस पर भरोसा कर सके, और वो क्या होनी चाहिए, कंपैरेबिलिटी, हम एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर सके। ये सारा उसी का दिया हुआ है बेटा, करेक्ट क्वालिटेटिव का।
अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या था हमारा, रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट था हमें पता चले प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या है उसका ऑब्जेक्टिव, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। अगर आपसे कोई पूछे फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है, तो दो वर्ड्स रिलेट होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन से, एसेट्स, लायबिलिटीज। Accounting also aim at ascertaining the financial position of the business in form of its assets and liabilities. उसने कहा अकाउंटिंग हमें ये भी बताती है कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और किस फॉर्म में बताती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड, हर पीरियड के एंड में। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है बेटे, एक साल की साइकिल होती है अकाउंटिंग पीरियड की, जो कि स्टार्ट होती है 1 अप्रैल और एंड होती है 31 मार्च। फिर से देखिए, अकाउंटिंग पीरियड की साइकिल होती है 12 महीनों की। इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड टिल 31 मार्च। A proper record of resources owned by the business organization. उसने कहा एक पूरा रिकॉर्ड होता है रिसोर्सेज का कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी चीजें हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जो चीजें आपकी अपने पास होती हैं, आपकी पोजेशंस होती हैं, उन्हें बोलते हैं एसेट्स। तो वो भी यही कह रहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड बनाएंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी चीजें क्या है, अपनी चीजों को बोलते हैं एसेट्स। एंड क्लेम्स अगेंस्ट सच रिसोर्सेज, और क्लेम मतलब हमने कितना दूसरे लोगों का देना है, that is known as liabilities. Facilitates the preparation of a statement known as balance sheet position statement. इसको अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना। बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट अगर पूछे क्या है, बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट ये कंपनी की पोजीशन बताती है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लिखोगे कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे कि हमें कंपनी की पोजेशंस और क्लेम्स के बारे में पता चलता है। पोजेशंस का मतलब होता है एसेट्स, क्लेम्स का मतलब होता है लायबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने सबसे पहले मुझे बताया था, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। उसने कहा है जो अकाउंटेंसी है वो यूजर को इंफॉर्मेशन बताती है। देखिए ये कितना ब्रॉड है, इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें बहुत मीनिंगफुल चीजें हैं। The accounting information generated by the accounting process is communicated in form of reports, statement, graphs, charts to the users who need it in different decision situations. उसने कहा है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनती है अकाउंटिंग प्रोसेस से, ठीक है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनती है वो हम यूजर्स को कैसे देते हैं, हमने ये पहले भी पढ़ा था, वो हम देते हैं रिपोर्ट की फॉर्म में। उसने कहा रिपोर्ट भी देते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं, ग्राफ भी देते हैं, चार्ट भी देते हैं। क्यों देते हैं हम उनको ये इंफॉर्मेशन, ताकि वो इसके ऊपर डिसीजन ले सके। As already stated, there are two main user group. उसने कहा दो ग्रुप हैं। उसने कहा मैंने जैसे ये बता दिया और आप सबको भी पता है यूजर ग्रुप कितने होते हैं, दो होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, मैनेजमेंट who needs timely information on cost of sales, प्रॉफिटेबिलिटी। एक तो मैनेजमेंट है जो ये जानना चाहती है कि सेल कितनी हुई है, कितने की सेल हुई है और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, ताकि वो क्या कर सके, फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट ये जानना चाहती है कि कितनी सेल हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ताकि वो आने वाले फ्यूचर के बारे में प्लान कर सके। कंट्रोल मतलब कि अगर कोई डेविएशंस हैं तो उन्हें कंट्रोल कर सके और सही डिसीजन ले सके। And external users who have limited authority, ability and resources to obtain the necessary information and have to rely on financial statements. पहले तो उसने internal users के बारे में बताया, अब वो कह रहा है जो external users हैं, external users कौन है, बाहर के लोग। जैसे कि कौन हो सकता है external user, उत्सव आप बताइए बेटा, एग्जाम्पल ऑफ वन एक्सटर्नल यूजर। उत्सव, क्रिश, मैम बैंक। यस गुड। एक्सटर्नल यूजर बैंक हो गया, और कौन हो सकता है, टैक्स इन्वेस्टर। अथॉरिटी।
टैक्स अथॉरिटीज, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स who have limited authority. Limited authority ठीक कह रहे हैं ना कि वो आपके इंटरनल जितनी अथॉरिटी इंटरनल लोगों को देखने की एक्सटर्नल को उतनी तो नहीं है, उनके पास लिमिटेड अथॉरिटी है. एबिलिटी एंड रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज भी कम है टू ऑब्टेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. वो किसके ऊपर रिलाई करते हैं? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो आपके माइंड में दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस. जो हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं बेटा, ये हर किसी के लिए ओपन होता है. इंटरनल के लिए तो हुई है, ये एक्सटर्नल के लिए भी है. तो एक्सटर्नल प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता लगाएंगे? हर कंपनी का प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है. और बैलेंस शीट से उसे क्या पता चलेगा? एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है. ठीक. अब एक क्वेश्चन है मेरे पास क्रिश के लिए. क्रिश, एक बात बताइए बेटा, बैलेंस शीट में कैसे पता चलेगा कि ऑनर का पैसा कितना है? मैम हम हर रोल रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम आखिरी में ऐड कर सकते हैं कि हमने नहीं. कितना इन्वेस्ट करा है. और कोई बताओ किसको पता है बैलेंस शीट में कैसे पता चलेगा कि, हाँ बताओ, बैलेंस शीट में कैसे पता चलेगा कि ऑनर्स मनी कितनी है? किस पॉइंट से पता चलता है? मैम बाय हाँ कैपिटल. जी, कौन बताएगा आप में से? अनम्यूट करके बताओ किसको पता है. एक्सपेंस. नो. कैन यू सम अदर विल ट्राई नाउ? नो. कैपिटल. यस, गुड. बेटे आप सबको पता तो है कैपिटल वर्ड क्या है? कैपिटल वर्ड ये बताता है कि जो हमारा ऑनर है उसकी मनी क्या है. कैपिटल का तो लॉजिक ही ये है. मैंने आपको क्या बताया था, जब ऑनर मनी इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में तो वो कभी भी अपना नाम नहीं लिखता है, उसके नाम की जगह लिखा जाता है वर्ड कैपिटल. क्यों? ताकि जो एक्सटर्नल यूजर हैं वो डिफरेंट कंपनीज की जब बैलेंस शीट पे फोकस करेंगे, सपोज करो एक्सटर्नल के पास 5 कंपनी की बैलेंस शीट है, ABCDE. ठीक. अब उसको क्या पता हर कंपनी का ऑनर कौन है? तो पहले तो ऑनर का नाम थोड़ा ना सर्च आउट करेगा. तो इससे बेटर है कि हर कंपनी की बैलेंस शीट में क्विकली रैंडमली देख लेगा, क्विकली कि कैपिटल पे कितना पैसा लिखा है, तो उसको 1 सेकंड में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऑनर्स फंड, ऑनर्स मनी इन द बिजनेस, दैट इज नोन एज कैपिटल. ठीक है. तो एक्सटर्नल यूजर्स रिलाई करते हैं किसके ऊपर? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में सिर्फ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इनकम एंड इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंस शीट पोजीशन स्टेटमेंट उसे बोलते हैं बैलेंस शीट, जो कि हमें बताती है एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज के बारे में. ठीक है, आगे देखिए. हाँ जी, अब मैं इसी में वापस पढ़ रही हूँ बेटा. प्राइमरली द एक्सटर्नल यूजर्स आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग. अब ना बेटा वो एक्सटर्नल यूजर्स की डिटेल बता रहा है कि हर एक एक्सटर्नल यूजर को क्यों इंटरेस्टेड है. अब देखिए एक्सटर्नल यूजर्स में आपको एक पहले हम इंट्रोड्यूस करा दूं एक्सटर्नल यूजर से. सबसे पहले लिखा है इन्वेस्टर्स, दिस इज वन एक्सटर्नल यूजर. देन यूनियन एंड एम्प्लॉयज, लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, suppliers and creditors, customers, government, social responsibility groups, competitors. ये सब क्या है? हमारे एक्सटर्नल यूजर्स. अब हम एक एक को पढ़ेंगे जिससे कि पता चलेगा कि हर यूजर का क्या मोटिव है. ये आ सकता है आपको 1 नंबर में, मतलब कि इन्वेस्टर का पूछेंगे, इन्वेस्टर क्यों जानना चाहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, तो आप बताओगे रीजन. फिर वो पूछेंगे सप्लायर क्यों जानना चाहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, तो आप बताओगे रीजन. तो देखिए सबसे पहले पढ़ रही हूँ, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. अच्छा पहले इनका मतलब समझाइए, इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं? कौन बताएगा? पर्व. मैम इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी चीज में, और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो मैम उसका पोटेंशियल हाँ जैसे. ठीक है, कुछ ठीक है. गुड पर्व, गुड.
इन्वेस्टर मतलब होता है जो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है, आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पोटेंशियल Yes, इन्वेस्टर होते हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाने चाहते हैं, उन्होंने लगाया नहीं है, बट दे वांट टू बी द इन्वेस्टर कंपनी। ठीक है, पर इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए? इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क। ये पीछे से अपना म्यूट कीजिए। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं? वाई, क्या रीजन है? बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑन द रिस्क एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है इन्वेस्टर हमेशा ये देखना चाहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी जल्दी लोगों को इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको रिटर्न कर रही है, उनको पैसा टाइम पे वापस कर रही है या नहीं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कितना है। अगर हमें दूसरे इन्वेस्टर से पता चलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट लॉस इनकर कर रही है और ये हमारा पैसा रिटर्न नहीं कर रही है और ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्की है, तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो हर इन्वेस्टर क्या चाहता है कि अगर उसने कंपनी को पैसा इन्वेस्ट किया है तो कंपनी समय पे उसका पैसा वापस भी करे। ठीक। दूसरा है यूनियन एंड एम्प्लॉय ग्रुप्स, इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेबिलिटी। जो ग्रुप्स है, यूनियन ग्रुप्स बने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप्स बने हुए बोरे, वो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारी स्टेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द बिजनेस। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, हमारे ओनर को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट हमारे में भी बंटना चाहिए, कैसे? हमारी सैलरी बढ़ा के। तो हमेशा जूनियर्स और एम्प्लॉय ग्रुप भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं और वो ये जानना चाहते हैं, सबसे पहले वो ये जानना चाहते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी क्या है। ये ना हो कि हमें कुछ दिनों में ऑर्गेनाइजेशन से आउट कर दिया जाए। दे वांट टू नो देयर स्टेबिलिटी or they want to know the profitability of the organization, or secondly they want to know in case the firm is earning the profit then how they are giving us more salary। distribution of wealth मतलब होता है कि हमारी सैलरी कैसे बढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट है lenders and financial institutions, इसमें कौन आते हैं? बैंक्स। अब बैंक्स क्यों जानना चाहते हैं? बैंक्स वांट टू नो द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। आप में से कोई बता सकते हैं क्रेडिट वर्दीनेस का क्या मतलब है? मैंने आपके साथ ये वर्ड पहले भी एक बार डिस्कस किया है, क्रेडिट वर्दीनेस, जब हमने बात की थी क्रेडिटर्स की। कि मैम वो किसी और बैंक से पैसे लेके उसे वापस रिटर्न कर दिए हैं उसने, ताकि पता चल सके कि जब मैंने आ जाऊंगी ऐसे करना पड़ता है। देखो हाँ जी, क्रेडिट वर्दीनेस क्या थी? क्रेडिट वर्दीनेस, हाँ आपने कुछ बताया, पर्व आप ठीक बता रहे थे बेटा। मैम वही कि मैम चेक करना कि अगर उसने किसी बैंक से पहले पैसे लिए हुए तो उसने कितने टाइम में उसे लौटा दिया है। यस यस, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, हमने किसी पे उधार पे पैसा लिया, जैसे मैंने बात की कि 1 साल के लिए पैसा लिया, अगर हम 1 साल में वापस नहीं करते तो आप लोगों ने, किसी ने कहा था कोई बात नहीं अगले साल कर देंगे, तो आपको मैंने ये समझाया था अगर हम लोगों का पैसा वापस नहीं करते तो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस पोजीशन क्या होती है? खराब हो जाती है ना। क्रेडिट वर्दीनेस खराब हो जाती है, उसे बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। तो क्रेडिट वर्दीनेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है बेटा, तभी ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा देगी। और वो कब कैसे स्ट्रांग होगी? जब आप समय पे अपने उधार चुकाओगे। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस लोन पे करने की एबिलिटी, इंटरेस्ट पे करने की अच्छी है या बुरी है। बेटा ये किसका माइक म्यूट नहीं है? माइक म्यूट करो पहले एवरीवन। अब फिर से देखिए, वी हैव डिस्कस अबाउट द 3 पर्संस। इन्वेस्टर्स क्या जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें समय पे वापस मिले और हमारे पैसे में रिस्क ना हो। पता चले कि मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे 1 लाख के और आने वाले समय में मेरे शेयर्स बिक ही नहीं रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो गई है, ठीक है ना, मेरा पैसा वहां फंस गया है, तो वो क्या होते हैं, हम उस कंपनी में पैसा फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा उसने कहा है जो बहुत बड़े बड़े यूनियंस बनी होती हैं,
यूनियंस भी जानना चाहती हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है, और वो ये जानना चाहती हैं कि क्या प्रॉफिट कंपनी अपने पास ही रख रही है या वर्कर्स में भी बांट रही है। बैंक्स क्या जानना चाहते हैं कि हम अगर कंपनी को उधार दे देते हैं तो क्या कंपनी हमारा लोन वापस कर पाएगी, क्या कंपनी हर महीने इंटरेस्ट दे पाएगी। तो ये उनको कहां से पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, customers information on the suppliers and creditors. Suppliers information on whether amount owed will be repaid. Suppliers और creditors का मतलब क्या है? दुकानदार ने किसी से उधार पे सामान खरीदा बल्क में और आपने उसे समय पे पैसा दिया है या नहीं दिया है, तभी तो और क्रेडिटर्स आपको पैसा देंगे। Information on whether amount owed will be repaid when due एंड ऑन द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। सप्लायर ये जानना चाहता है कि अगर हमने कंपनी को उधार पे सामान दिया है तो क्या कंपनी ने मुझे पैसा वापस किया है या नहीं। अब नेक्स्ट आगे कस्टमर्स, जैसे कि हम लोग हैं। इंफॉर्मेशन ऑन द continued existence of the business and thus the profitability of the continued supply of product, parts and after sale services. Yes, बहुत important point। हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो बिजनेस का सामान खरीद रहे हैं वो बिजनेस कंटिन्यू में चलेगा और क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस सामान की प्रोडक्ट की सप्लाई हमें मिलेगी, और जा उस प्रोडक्ट, जैसे अब सपोज कीजिए सिंपल एग्जांपल है, तो मैंने वॉशिंग मशीन ली एलजी की वॉशिंग मशीन ले रही हूँ, तो मैं लेते समय ये सोचूंगी कि जो जिस ब्रांड की मैं मशीन ले रही हूँ आने वाले समय में वो ब्रांड बंद तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो बंद हो जाएगा तो मुझे उसके प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे। हमें ये भी तो देखना है कंटिन्यू रहेगा ना, ये ना हो कि बिजनेस कंपनी अपना सामान सस्ता दे रही होगी कि कंपनी बंद होने लगी है। अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो मुझे उसके जो पार्ट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, तो मुझे ये पहले ढूंढना पड़ेगा क्या अवेलेबिलिटी है, उस पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है, उसके प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, और अगर प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो सर्विस सेंटर है कि नहीं। तो कस्टमर इन चीजों को जानना चाहता है। नेक्स्ट, government and other regulatories, information on the allocation of resources and compliance to regulations। गवर्नमेंट क्या जानना चाहती है कि गवर्नमेंट ने जितने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो, और बाकी जो रिसोर्सेज हैं जो आप और इकोनॉमी के रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर रहे हो और आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो या नहीं। अब आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, इसमें इन्वायरमेंटल ग्रुप्स, इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। उसमें ये लोग ये देखना चाहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं है। कंपटीटर्स, information on the relatively strength and weakness of their competition and for comparative and benchmark purposes। कंपटीटर्स क्या जानना चाहते हैं कि तुम्हारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारे कंपनी की वीकनेस क्या है, और कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारे कंपनी में बहुत अच्छी है। बेंचमार्क होता है जिसको कि हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं कि हाँ एक बहुत अच्छी चीज है, हम भी ऐसे करेंगे, उसे बेंचमार्क बोलते हैं। बेंचमार्क मतलब हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो हम दूसरे लोगों से भी सीखना चाहते हैं। Whereas the above categories of users share in the wealth of the company, competitors require the information mainly for strategic purpose। उसने ये लिखा है कि ऊपर जितने भी लोग हैं वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि जो यूजर है अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को कैसे यूज करे, पर कंपटीटर्स क्या जानना चाहते हैं कि इस कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है। कंपटीटर्स कभी ये नहीं जानना चाहता कि तुम कितना पैसा अर्न कर रहे हो, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बल्कि वो ये देखना चाहते हैं कि तुमने जो नई स्ट्रेटजी बनाई है क्या वो अच्छी है। वो तुम्हारे जैसी स्ट्रेटजी लेना चाहता है, या वो ये ढूंढना चाहता है कि नहीं इनकी स्ट्रेटजी बेकार है। तो कंपटीटर्स क्या जानना चाहते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है, पर बाकी के लोगों को आपकी स्ट्रेटजी से कोई मतलब नहीं है। ऊपर के लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि पैसे, वेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। जैसे कि इन्वेस्टर भी क्या जानना चाहता है, वेल्थ, कि मेरा पैसा मिलेगा। यूनियन और एम्प्लॉय क्या जानना चाहते हैं कि जो कंपनी की वेल्थ है हमें मिलेगी। लेंडर भी वेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा। सप्लायर भी वेल्थ के बारे में जानना चाहता है, लेकिन कंपटीटर को तुम्हारी वेल्थ से मतलब नहीं है। कंपटीटर ये जानना चाहते हैं कि तुम स्ट्रैटेजी क्या यूज कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रैटेजी देख के वो अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करेगा अगर उसे अच्छी लगे। ठीक है, तो ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम कर सकते हैं
from the that one marks point of view. अब अभी हमने कुछ सारी चीजें डिस्कस की हैं. अभी मुझे बताइए किसी को कुछ पूछना है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे आज नए हैं. सिमर बेटा, all of you first of all click the option start video. I want to have conversation with you. हाँ. Everyone click at the option start video. I want to have conversation with you. First, I can say the regular students of my class. Beforehand, it was Parv, but now he is not the regular student. Parv, in the starting days, you were very regular. What happened you now, beta Parv? Ma'am, I am regular now because the connection is now good. नहीं समझ आई आपकी बात बेटे, क्या कह रहे हो आप? मैम पहले कनेक्शन प्रॉब्लम्स थी ना, तो अब वो ठीक हो गई. अब तो मैं रेगुलर ही हूँ. ठीक है, अब रेगुलर लेना है ना. और इन केस ऑफ तनिष्का, शी इज रेगुलर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. गुड. Manpreet, she joined late, but she is regular student. Good. Prisha, she is also regular student. Utsav, sometimes you won't appear. What happened, Utsav? आप बीच बीच में तो कंटिन्यूटी आते हो, फिर एक आधा दिन बीच में गायब क्यों हो जाते हो, उत्सव? Due to some network issues. उत्सव नहीं सुन रहा आपकी आवाज बेटा. Ma'am, here are some network issues. अभी भी नहीं सुन रही है. उत्सव चैट करके बताओ आप रेगुलर क्यों नहीं हो. चैट करके बताओ मुझे. क्रेश, सुशांत, सिमर, अंशिका, धैर्य, क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो. क्रेश, सुशांत, सिमर, अंशिका और धैर्य. सिमर बेटा, आपने पहले सिर्फ एक दिन क्लास अटेंड की थी, जब 2 दिन, उसके बाद आप क्यों नहीं आए इतने दिन, मुझे बताइए सिमर. और यू आर प्लानिंग टू स्विच ओवर टू साइंस, जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो. हाँ, फिर क्यों नहीं आ रहे सिमर? मैम पहले 2-3 दिन मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, पासवर्ड रॉन्ग आ रहा था. बेटे पर बहुत दिन हो गए हैं, आपको पता है. I have given the name to, आपको मुझे नहीं पता कॉल गई है नहीं गई है, but I have word with the principal ma'am, with the coordinators, everyone, that you so many people are not joining the class. आपकी क्लास में अगर हम एडुनेक्स में देखें, we are having total 18 students, और यहाँ तो 6 से ज्यादा नहीं होते आ जाए हैं, कभी 6 कभी 7, तो बाकी कैसे पढ़ेंगे बेटा? सिमर, अगर आप लोगों को लगता है कि 2 महीनों में स्कूल शुरू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. इन माई ओपिनियन अगस्त से पहले तो स्कूल शुरू ही नहीं होगा. तो आप बताइए, मेरा तो आधा सिलेबस हो जाएगा बेटे. और अगर आप लोग 11th नहीं करोगे, 11th तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है. आपको 12th में नहीं समझ आएगा कुछ भी. सिमर, जस्ट हैव अ वर्ड विद योर ब्रदर, वो तुम्हें बताएगा 12th कितनी मुश्किल है बेटे. 11th मुश्किल नहीं है, पर 12th बहुत मुश्किल है. जो 11th नहीं करेगा अकाउंटेंसी, आप बताइए, इतने डिफरेंट वर्ड्स हैं, अभी तो न्यूमेरिकल ही नहीं स्टार्ट हुआ. और जो हम थ्योरी कर रहे हैं ना बेटा 11th में, 12th में बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है. पहला न्यूमेरिकल चैप्टर है, और वही बच्चा 12th कर पाते हैं जिसे 11th आती है. एंड आई एम प्लानिंग टू डू 1 or 2 चैप्टर्स ऑफ 12th इन 11th ओनली. मेरी तो इस साल ये प्लानिंग थी, क्योंकि 12th में बहुत सिलेबस है, 11th में कम सिलेबस है. तो मेरी तो ये प्लानिंग है, अगर फिजिबल हुआ तो हम 12th का कोई एक चैप्टर 11th में करेंगे. पर आप अगर कॉपरेट नहीं करोगे तो आपको कुछ आएगा नहीं बेटा. तो प्लीज, जितने स्टूडेंट्स हो, तुम लोग आ रहे हो, कहीं तो आ ही नहीं रहे हैं, उनकी तो कभी शक्ल ही नहीं देखी है. तो प्लीज घर में बैठे, आपको इतनी अच्छी ऑप्शन है, अपने बेड में बैठ के, कहीं भी बैठ के, आपको एक ईयरफोन लगा के और सिर्फ वीडियो स्टार्ट करके आपको अपनी शक्ल दिखानी है, पढ़ना है. तो प्लीज उसका बेनिफिट लीजिए बेटा, है ना, बेनिफिट लीजिए. मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछिए. आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, आपकी मर्जी है, आप कहीं भी ओपन करके डीके गोयल में से पढ़ सकते हैं. आप घर में बैठे हैं, नेट यूज कीजिए, सारा दिन आप बेटे घर में है. अभी भी अगर आप नहीं अच्छे से पढ़ पाएंगे तो स्कूल में थोड़ा ना पढ़ाई होती है, आने जाने में इतना टाइम वेस्ट होता है. नाउ यू आर फ्री एट होम, जब चाहे सो सकते हैं. रात को कई स्टूडेंट की फिलॉसफी होती है कि हमें रात को पढ़ना है, हम सुबह सोएंगे, तो आप ये कर सकते हो काम. अब रात को शांति होती, पढ़ सकते हो.
अभी 11th को बहुत सीरियसली लेंगे तो यू विल फ्लोरिश इन 12th बेटा। अकाउंटेंसी जो है ना बहुत मुश्किल है, मैं आपको अभी बता रही हूँ। बस कॉमर्स के बच्चे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से डरते हैं, अकाउंटेंसी से, और वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग में अकाउंटेंसी पढ़ते नहीं है। आप कभी भी किसी कॉमर्स के बच्चे को देखो, आप पूछोगे क्या कर रहे हो, वो कहेगा मैं अकाउंटेंसी कर रहा हूँ। पूछ लीजिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी स्कूल के बच्चे से पूछ लीजिए। आधे, कईयों को तो शौक होता है करने का, और कई इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने 11th पढ़ी नहीं है। तो जो 11th अच्छे से पढ़ेगा उसको 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं देखो आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ा रही हूँ बेटा, क्लास में तो ऐसा हो भी नहीं पाता है क्योंकि क्लास में तो इतना शोर होता है, यहाँ पे तो शोर भी नहीं है। तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए ना। हर लाइन के बाद आप मुझे कह सकते हैं कि मैम ये लाइन फिर से बता दीजिए, मैं रेडी हूँ आपको बताने के लिए बेटा, प्लीज मिस मत कीजिए। हाँ सुशांत आप बताइए। सुशांत, क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो। यस मैम। हाँ जी, और ये सब वीडियो पे क्लिक क्यों नहीं कर रहे? क्रिश क्या दिक्कत है? क्रिश क्या दिक्कत है? सुशांत क्या दिक्कत है बेटा? वीडियो क्लिक क्यों नहीं करते हो आप? अच्छा, क्रिश ने कहा है कि मैं नहीं कर सकता। फाइन क्रिश, नो प्रॉब्लम। ओके उत्सव, यू सेज देयर इज सम नेटवर्क इशू। उत्सव थोड़ा सा बेटा कोशिश करो कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की, कि आपके एरिया में कौन से नेटवर्क कनेक्शन है जो कि फिजिबल हैं। उत्सव, क्योंकि बेटा मैं तो कराती रहूंगी, आप पीछे रह जाओगे, है ना बेटा। थोड़ा सा फाइंड आउट करो, कोई ऐसा लो जिस मतलब कि जिसमें कनेक्टिविटी अच्छी हो तुम्हारे एरिया में, ठीक। हाँ बच्चे, अंशिका नरूला, सुशांत आप बताइए पहले। एक दिन आते हो फिर 2 दिन गायब हो जाते हो, टेल मी व्हाई। अरे सुशांत यस मैम। बेटे क्यों बार बार गायब हो रहे हो आप? एक दिन आते हो, 4 दिन नहीं आते हो, फिर एक दिन आते हो, फिर नहीं आते हो। आपको कैसे पढ़ोगे? आपकी कजन है ना आकांक्षा पिपलानी। यस मैम। सुशांत, योर Yes, कजन इज ma'am. आकांक्षा पिपलानी। यस मैम। हाँ, उनसे पूछ लेना मैम कैसे पढ़ाती हैं, वो पढ़ चुकी हैं। शी वाज माय स्टूडेंट। उससे पूछो कि अकाउंटेंसी इजी होती है मुश्किल होती है, उसने पूछना जरा आज फोन करके, आपको अच्छे से बता देगी कैसी होती है अकाउंटेंसी। जिनके ब्रदर्स सिस्टर्स ऐसे हैं जो अकाउंटेंसी एटलीस्ट मेरे से पढ़ चुके हैं, वो तो कम से कम गाइड करो और जाके पूछो कि कितनी इजी होती है कि मुश्किल होती है, आपको सब पता चल जाएगा कैसी होती है। जैसे अंशिका नरूला, क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो। हाँ जी, अंशिका बेटे आप क्यों नहीं आ रहे? 2 दिन आए थे फिर नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है बेटा? आप म्यूट हो बेटे। मैम साइन इन प्रॉब्लम्स थी। नहीं सुन रहा बेटा, हेलो, अभी भी नहीं सुन रहा बेटे। चेक करो, कनेक्शन चेक करो, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। कनेक्शन तो सही है। अंशिका चैट में लिख के बताओ क्या कह रहे हो आप। और मुझे ये प्रॉमिस चाहिए, ये सिमर, सुशांत, अंशिका से चैट में कहिए कि दैट वी विल बी प्रेजेंट एवरी डे। आपका अगर नेटवर्किंग इशू है, एक बार लॉगिन तो करो बेटे। आप लोग तो लॉगिन ही नहीं करते हो, बस ऐसे ही कह देते हो नेटवर्किंग इशू है। अरे लॉगिन तो करो बेटा, नेटवर्किंग इशू है तो। आई रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ एवरीवन। चलिए, let's continue with the same. We are having 2 sessions today ना, तो let's continue with the same. हाँ जी, अभी हमने क्या किया? We have done, I'm going to revise it with you. We have done the objectives. बेटा अभी तक हमने ना 2 मेन क्वेश्चंस किए हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा ऑब्जेक्टिव किए, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछ लूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स चारों याद है किसी को? आप में से जिसको भी याद है अनम्यूट करके मुझे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम बताइए। मैम रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। यस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, और क्या था एक? रेलेवेंट।
रेलेवेंट, गुड। अच्छा, आप में से कोई एक अपने आप को अनम्यूट करके ऑब्जेक्टिव्स बताइए अगर आपको याद है तो, जो अभी हमने पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी याद है, एक या दो। हाँ जी, बताओ। मैम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यस, Maintaining records यस, गुड। मेंटेनिंग of business रिकॉर्ड, यस, transaction. Financial position. यस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, जब फाइनेंशियल पोजीशन की बात होगी तो क्या, किस चीज के बारे में लिखेंगे फाइनेंशियल पोजीशन में? Assets or liability. यस, बैलेंस शीट के बारे में लिखेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब एक रह गया सिर्फ, क्या था वो? Providing information to external and यस, internal प्रोवाइडिंग users. इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल। उसमें अलग अलग एक एक पर्सन है ना, लेंडर, ये वो सब अलग अलग आएंगे आपको एक नंबर के क्वेश्चन में। दैट हाउ द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू लेंडर, ऐसे करके आ जाएगा। हाउ द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू क्रेडिटर, हाउ द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू कंपटीटर्स। तो ऐसे करके एक एक आएगा, ठीक है, फाइन। चलिए, नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। यस, हाँ जी। इज इट विजिबल टू एवरीवन बेटा? Yes, ma'am. ओके, रोल ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें होमवर्क भी मुझे आपके लिए दिख रहा है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फोर्थ। इसको आप करेंगे, अगर नहीं आएगा ना बेटा, वी विल डिस्कस इट टुमारो और वी विल डिस्कस इट ऑन मंडे, फाइन। अगर कोई नहीं आएगा, पर मैं रीड नहीं करूंगी, पहले आप घर में ही खुद से करेंगे, नहीं आएगा तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन। रूल ऑफ अकाउंटिंग। For centuries, the role of accounting has been changing with the changes in economic development and increasing societal demands. उसने कहा है कि जैसे जैसे environment change हो रहा है, economy की growth हो रही है, ऐसे ही accounting का role भी change हो रहा है। It describes and analyzes a mass of data of an enterprise through measurement, classification, summarization, and reduces those data into reports and statements, which show the financial condition and results of operation of that enterprise. उसने सिर्फ ये बताया है कि अकाउंटिंग क्या करता है। उसने कहा है कि अकाउंटिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, उसका बहुत सारा डाटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं पहले, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, और फिर उनसे हम क्या बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं। और वो रिपोर्ट क्या बताती है हमें, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन और उसके रिजल्ट्स के बारे में। Hence, it is regarded as the language of business, जो कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो अकाउंटिंग है वो क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। It also performs the service activity by providing quantitative information. उसने कहा अकाउंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दिया, कैसे, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक। क्वांटिटी मतलब कितना, कितनी चीज कितने की है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। Accounting as an information system collects and communicates economic information about the enterprise to a wide variety of interested parties. जो हमने पढ़ा था, accounting क्या करती है, information को communicate करती है बहुत सारे लोगों में। However, accounting information relates to the past transaction and is quantitative and financial in nature. It does not provide qualitative and non-financial information. उसने कहा है जो accounting information है वो हमेशा past के बारे में होती है। past का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, लेकिन हम रिजल्ट कब डिस्क्लोज करते हैं, 31 मार्च, तो पूरे पिछले साल के रिजल्ट्स होते हैं, पास के बारे में होती है। और ये क्या बताती है, क्वांटिटी बताती है, किसके बारे में नहीं, क्वांटिटी बताती है। और फाइनेंशियल है इन नेचर, फाइनेंशियल मतलब उन चीजों को रिकॉर्ड करती है जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करती जो नॉन फाइनेंशियल है, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल की एग्जांपल बता सकते हैं, पर्व बताएगा मुझे, पर्व नॉन फाइनेंशियल की एग्जांपल बताना, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पर्व नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एग्जांपल बताओ बेटा। व्हाट हैपन? परीक्षा आप बता सकते हो? परीक्षा नो।
बेटा नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अच्छा तनिष्का आप बताइए। मैम किसी को हेल्प करना। हाँ, और ये भी तो है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं बेटा, तनिष्का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बताओ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसने कहा है ऑर्गेनाइजेशन में हर रोज की चीजें हम रिकॉर्ड करती हैं, है ना, और कौन सी करते हैं जो फाइनेंशियल है। उसने कहा नॉन फाइनेंशियल नहीं करते। तो बताओ नॉन फाइनेंशियल कौन सी है? नो आइडिया तनिष्का? नो मैम। उत्सव आप बता सकते हो? नॉन फाइनेंशियल का मतलब No, होता है ma'am. जिसको हम फाइनेंस में कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक नया मैनेजर आया है, तो वो तो नॉन फाइनेंशियली तो है। फाइन। तो उसने कहा है हमने उन चीजों को लिखना है जो फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल को नहीं लिखना। जैसे कि हमने डिस्कस तो किया था बेटा कि ह्यूमन बीइंग को हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज चेंज होती हैं तो उनको कैसे लिखेंगे? उसका इफेक्ट तो प्रॉफिट पे पड़ेगा ना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नया मैनेजर आया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने 2 लोगों की और अपॉइंटमेंट की है, हम नहीं लिख सकते क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग को कैलकुलेट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। वो होती है नॉन फाइनेंशियल। तो उसने कहा है अकाउंटिंग में ये बेटा एक पैराग्राफ है, ये वही है जो हम सब पढ़ चुके हैं। ये उन्हें रोल ऑफ अकाउंटिंग है। रोल ऑफ अकाउंटिंग में उसने सिर्फ इतना बताया है कि आने वाले समय में अकाउंटिंग का रोल बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की और सोसाइटी भी नई नई चीजों को डिमांड करती है। फिर उसने कहा अकाउंटिंग करती क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है उसको मेजर करती है, क्लासिफाई करती है और फिर रिपोर्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करती है आउटसाइड लोगों को। इसलिए उसने कहा है कि ये क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। फिर उसने कहा है कि जो इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो हम इंटरेस्टेड पार्टीज को देते हैं। फिर उसने कहा है जी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किससे रिलेट करती है? पास से रिलेटेड करती है। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन सी चीजें होती हैं? वो चीजें जो फाइनेंशियल इन नेचर हैं, नॉन फाइनेंशियल नहीं होती। The limitation of accounting must be kept in view while making use of the accounting information. Limitation जरूर रखनी। बच्चे अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये देखो टिक द करेक्ट आंसर्स, इसको आप करके आओगे। अगर आपको नहीं आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। और वन थिंग मोर, इसको कीजिए करके। आपको एडुनेक्स ऑपरेट करना आता है बेटा? एडुनेक्स ऑपरेट करना आता है सबको? नो? बच्चे आपको सबको पता है कि अब हम होमवर्क एडुनेक्स के थ्रू देंगे और आपको आंसर भी एडुनेक्स के थ्रू देने पड़ेंगे। आपको पता है ये बात? No. तनिष्का, पर्व, आपको पता है ये बात कि एडुनेक्स में होमवर्क आएगा? नो मैम। हाँ तनिष्का, आपको क्लास टीचर ने नहीं बताया बेटा? अब ऐसा प्रोसीजर है कि जितने भी होमवर्क्स होंगे ना वो हम भेजेंगे एडुनेक्स के थ्रू, और एडुनेक्स में ही आप अपना हम होमवर्क अपलोड भी करेंगे। फाइन? हमें फोटोज क्लिक करके भेज सकते हो, लेकिन मेन होमवर्क आपका चेक होगा एडुनेक्स में। रोज एडुनेक्स खोलिए, एडुनेक्स में अपना होमवर्क देखिए। जो तो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका तो एडुनेक्स नंबर वही रहेगा जो नए हैं। आपकी जैसे मनप्रीत है, तो मनप्रीत आपको क्लास टीचर से पूछना पड़ेगा बेटा। मनप्रीत आप ग्रुप में होंगे ना? ग्रुप में आपका क्लास में अपना ग्रुप है ना नंबर ही बेटा? डालना। तो मनप्रीत आपको क्लास ग्रुप से पूछना पड़ेगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ, एडुनेक्स के थ्रू ही होमवर्क जाएगा, उसी में आप आंसर्स भी देंगे। तो एडुनेक्स खोल के देख लिया करो। वैसे बेटा मेरा जो होमवर्क होगा मैं क्लास में आपको बता ही दूंगी। जैसे मैंने आपको बता दिया है, यही मैं ग्रुप उसमें भी डालूंगी एडुनेक्स में होमवर्क में कि मैंने ये होमवर्क दिया। ठीक है? आप ये सोचिए रोज कुछ ना कुछ तो आपका होमवर्क होगा ही। फाइन? तो ये आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इसमें टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, इसको आप करेंगे। अगर कोई डाउट होगी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये चैप्टर एक तरह यहां से खत्म हो गया। यहाँ पे आगे आ गया बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, जो ऑलमोस्ट मैं आपको करा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? अगर इनकी डेफिनेशन टिपिकल लगती है, जो मैंने जो लिखाई है उसी को पढ़ लेना। लेकिन इसमें मैं बता दूंगी कौन सी कॉपी में लिखनी है डेफिनेशन, सारी नहीं लिखनी है, ठीक है बेटा?
अब ये चैप्टर हो गया आपका, मैं एक बार चेक करूं कितना रहता है ये चैप्टर. लेट मी हैव अ लुक. खत्म है बेटा ये. बच्चे एक होमवर्क मुझे आपको देना है. राइट एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. ये आप पहले सर्च आउट करेंगे, नहीं मिलेगा तब मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन दिस वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. अगर आप में से किसी के पास डीके गोयल है या कहीं से अरेंज हो सकती है तो किसी सीनियर के पास, किसी आपके सीनियर के पास जो भी 12th में गए हैं उनके पास है तो आप, अच्छा सुशांत आपके पास है, अगर जिन जिन के पास डीके गोयल Yes, अरेंज हो ma'am. जाएगी वो क्लिक करो यस पे, यस ऑप्शन पे क्लिक करो जिनके पास डीके गोयल अरेंज हो जाएगी 11th की. और अगर जिसके पास नहीं होती है, अरेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने सीनियर को कहो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग की फोटो क्लिक करके आपको भेज दें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं है. आपको अपनी कॉपी में लिखनी है एटलीस्ट 4 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. एक बार टिक कीजिए जो जो अरेंज कर सकता है डीके गोयल, या किसी को कह सकता है कि फोटो क्लिक करके आपको भेज दें. टिक करो. पता है आपको टिक कहां से करते हैं? पार्टिसिपेंट्स में जाइए, नीचे पार्टिसिपेंट्स में जाइए, मैनेज पार्टिसिपेंट्स में, पार्टिसिपेंट्स में जाओ, वहां पे ग्रीन में यस, एन में नो, रेड में नो है, जो जिसका मैम मेरे पास है डीके गोयल, है मेरे पास है डीके गोयल. हाँ तो टिक लगाओ वहां पे, मुझे वहां से क्लियर हो जाएगा. टिक करो, ग्रीन पे टिक करो, जिसके पास नहीं है क्रॉस करो, नो लिखो. हाँ पर्व ने बता दिया, कृष्ण ने बता दिया, मनप्रीत ने नहीं बताया, मनप्रीत ने बताया यस, कृष्ण ने भी बता दिया. प्रीशा के पास नहीं है, अंशिका के पास है, मनप्रीत के पास भी नहीं है, पर्व के पास है, सिमर के पास भी है, सुशांत के पास भी है, तनवीर इज ऑल्सो देयर. तनवीर यू ज्वाइन नाउ ओनली. तनवीर मैम आई हैव टीएस. बच्चे इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया? पिछले सेशन में ma'am. क्यों नहीं थे आप? सोया हुआ था मुझे. बच्चे पिछले सेशन में भी होना चाहिए था ना बेटा. अच्छा ऐसा है बेटा, जिनके पास ऑप्शन नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं, जो ये आपके फ्रेंड्स हैं ये डीके गोयल से नोट डाउन कर लेंगे, फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू इनसे आंसर्स ले लेंगे. फाइन, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग डीके गोयल, मेरे पास भी नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ. ठीक है, तो आपने अब एक दूसरे से जैसे भी करके अरेंज करके, क्योंकि आप में से 4-5 लोग हैं दोज हु आर हैविंग डीके गोयल. सुशांत के पास है, सिमर के पास है, पर्व के पास है और अनुष्का के पास है. तो आप प्लीज एक दूसरे से अरेंज कर लीजिए. अरेंज करके आपको 4 लिमिटेशंस लिखनी है अकाउंटिंग की. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. ये ना हो मैं भूल जाऊं और एग्जाम में आ जाए. दिस इज टू इम्पोर्टेंट, क्वाइट इम्पोर्टेंट. ठीक है, ये आपको बताना था. मैं चैप्टर में पहुंच रही हूँ फिर से. हाँ जी, दिस इज द होमवर्क टेस्ट, योर अंडरस्टैंडिंग 4. अब आगे करते हैं. बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग. एंटिटी. एंटिटी मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था. हाँ कोई एक बताइए बेटा. अब ये सारे आपने मुझे बताने, आई हैव डन ऑल दिस विद यू. एक एक करके बताते चाहिए. पहले कौन बताएगा? अपने आप इनिशिएटिव लो. कौन बताएगा एंटिटी? नो. एंटिटी का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन. मैंने बताया तो था एंटिटी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन. वो कौन सी हो सकती है? सोल प्रोप्राइटर भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, उसे बोलते हैं एंटिटी. अब देखिए, एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज एन डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस. उसने कहा एंटिटी कोई भी ऐसी जगह चीज है जिसकी एक एग्जिस्टेंस हो. जैसे भारतीय एग्जिस्टेंस है ना, दिखाई देता है, उसे बोलते हैं एंटिटी.
बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेशली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज, जैसे कि सुपर बाजार हो गया, हायर ज्वेलर्स हो गया, मतलब कि किसी भी दुकान को एंटिटी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बाजार, कोई भी मार्केट जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, उसे क्या बोलेंगे हम? एंटिटी। An accounting system is always divide for a specific business entity. उसने कहा है कि हर एंटिटी का अपना एक अकाउंट सिस्टम होता है। जैसे एक बिग बाजार इतना बड़ा है, वो भी अकाउंटिंग मेंटेन करता है। एक छोटी सी दुकान अगर हम ले लेते हैं स्टेशनरी की, वो भी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। तो हर एक इन दुकान को, जो सुपर बाजार को, हर कोई जो अकाउंटिंग मेंटेन करता है उसे हम बोलते हैं एंटिटी। आगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बताइए क्या होता है? day-to-day happenings of business. Yes, day-to-day happenings of the business or the event are known as transaction. जैसे कि देखो, an event involving some values between two or more entities. It can be a purchase of good, receipt of money. वही day-to-day happening हो गई ना, जा तो हमने goods खरीदी, जा हमने पैसा receive किया, creditor को payment किए, खर्चे करे. It can be cash transaction or a credit transaction. Credit transaction का मतलब क्या होता है? सिमर बताएगी। सिमर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है बेटा? अंशिका आप बताइए। व्हाट हैपन सिमर एंड अंशिका? तनवीर आप बताओ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? धार। धार पे कोई चीज खरीदनी। उसने कहा ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। तो क्रेडिट मतलब होते हैं उधार। अच्छा, आगे एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? Our possessions which will give financial profit in future. Yes, possessions which are earning a financial profit in the future. बेटा मैंने आपको आगे भी बताया था, डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी है, पेपर में डेफिनेशन नहीं आती। ये ना हो कि इनको बैठ के क्रैम कर करके लिखना शुरू कर दो, डेफिनेशंस कभी नहीं आती हैं। फाइन, इनको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग कॉपी में कोई नहीं लिखनी है। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, बस ये 4 क्वेश्चन है। पहले चैप्टर में ये 4 आ सकते हैं और कुछ नहीं आ सकता। और इस डेफिनेशन में एक आधी डेफिनेशन है जो मैं आपको कहूंगी लिखने के लिए, बाकी कुछ नहीं लिखना है, आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। Assets are the economic resources of an enterprise that can be usefully expressed in monetary terms. Assets जो होती हैं उनको हम monetary form में express कर सकते हैं। Assets are items of value used by the business. For example, Super Bazaar owns a fleet of trucks. मैंने आपको बताया था ना, जो सामान हमारा खुद का होता है वो एसेट्स होती हैं। अब उसने कहा सुपर बाजार के पास बहुत सारे ट्रक्स है लोडिंग के लिए, तो वो उसके एसेट्स हैं। ठीक है, और वो ट्रक्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? These trucks provide economic benefit to the enterprise. The items will be shown on the asset side of the balance sheet. ये याद रखिए, एसेट्स आपको पता है, मैंने बताया था बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। तो एसेट्स को कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में। Assets can be broadly classified into 2, current and non-current. अच्छा, ये हो गया करंट एंड नॉन करंट। ये ऊपर दी हुई है, देखिए बेटा, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसको अपनी कॉपी में बना लेना। ये चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हम न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएगा हमें। देखो, एसेट्स, नॉन करंट, करंट। करंट कौन सी होती है? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है बेटा स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। फिर से देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जब हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है 1 साल से कम के लिए। इन्वेस्टर्स का मतलब होता है हमारा स्टॉक, वो हमारी एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होते हैं हमारे डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने उधार पे सामान बेचा है, वो हमारी एसेट है। कैश, बैंक में कैश, हमारे हाथ में कैश, वो हमारी एसेट है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, आपने कहीं से, आपने किसी को थोड़े समय के लिए लोन दिया है, वो आपकी एसेट है। आपने दिया है, लिया नहीं है आपने, आपने दिया है। अगर आप लोगे लोन तो वो लायबिलिटी है। ठीक है, आपने किसी को थोड़े समय के लिए उधार दिया है, अदर करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट क्या होती है? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जिसको हम छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट होती है गुडविल।
गुडविल मतलब कंपनी की रेपुटेशन, लेकिन कंपनी अपनी गुडविल को कैलकुलेट करती है इन टर्म्स ऑफ मनी। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। तो एसेट्स दो तरीके की होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी, टेंजिबल जो दिखाई देती हैं, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी। इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देती हैं जैसे कि गुडविल। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा अधूरा बना हुआ सामान आपका, वो भी तो आपकी एसेट है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट जो अभी आपके पास नहीं है, अंडर डेवलपमेंट, गुडविल अभी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, थोड़ी बहुत गुडविल है। आगे है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में देखिए इन्होंने कहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, टैक्स डेफर्ड, ये रहने दीजिए, आपको नहीं समझ आएगा डेफर्ड टैक्स, इसको रहने दीजिए। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इस मींस आपने किसी बंदे को लंबे समय के लिए उधार दिया है। मैंने अपने फ्रेंड को 15 साल के लिए उधार दे दिया, तो वो मेरी क्या है, फिक्स्ड एसेट है। बच्चे मैंने आपको कराया था एसेट दो तरीके की होती है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। इन्होंने फिक्स को लिख लिया नॉन करंट एसेट, एक ही बात है, ये करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है, तो प्लीज इनको थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही लाइबिलिटीज हैं, दो तरीके की लाइबिलिटीज होती है। फिर कैपिटल आपको पता है क्या है, सेल्स आपको पता है क्या है, रेवेन्यू आपको पता है क्या है, एक्सपेंसेस भी आपको पता है। एक्सपेंसेस क्या थे, रोज के खर्चे, पता था ना, जैसे लिखा है ना वेजेस। बेटा आपको दिख रहा है ना, विजिबल है ना ये सारा कुछ, बेटा विजिबल है? यस मैम। यस मैम। बेटा देखो एक्सपेंसेस मैंने सब बता चुकी हूँ ना आपको। एक्सपेंसेस होते हैं रोज के खर्चे, जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी। और एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कभी कभार खर्चा होता है, जैसे मशीनरी परचेज की, प्लांट परचेज किया, ठीक है। प्रॉफिट भी आपको पता है, जब हमारा रेवेन्यू ज्यादा होता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं। गेन भी पता है आपको, फायदा लॉस भी आपको पता है। डिस्काउंट भी आपको मैंने बताया था। अच्छा डिस्काउंट याद है किसी को? चलिए आपसे डिस्काउंट पूछते हैं। हाँ चल, गुड पॉइंट। मैंने डिस्काउंट दो तरीके के कराए थे, देखो किसी को याद है? हाँ प्रीशा बताओ, आप बताना चाहते हो डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं प्रीशा? मैम ट्रेड डिस्काउंट हाँ और एंड कैश। वेरी गुड। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब आप में से कोई एक बताओ। अच्छा पहले सब क्लिक करो, जब डिस्कशन होती है ना तब अपनी वीडियो क्लिक कर लिया, ऑन कर लिया करो बेटा। जब हम डिस्कशन करने आते हैं ना तब अपनी वीडियोस ऑन कर लिया करो, ठीक। ठीक है प्रीशा, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अब आप में से कोई भी एक बताइए भाई, अपने आप को अनम्यूट करके, कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में अंतर क्या है, अपने आप बताइए। Ma'am, cash discount is a discount which when we give discount, मतलब कस्टमर मतलब उसी टाइम रुपीज देता है। हाँ बिल्कुल, जब हम इमीडिएट पेमेंट है ना, इसे हम यूज कर देते हैं इमीडिएट पेमेंट के टाइम। जो डिस्काउंट बोलते हैं उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। आप कोई और बताइए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? कोई और बताइए, ट्रेड डिस्काउंट किसे बोलते हैं? भूल गए? मैम जब किसी ट्रेड पे आपको डिस्काउंट मिलता है। नहीं समझ आई पर्व, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, फिर से बताओ। नहीं, जैसे पे लोड होते हैं गुड्स और अगर वो आते हैं तो कभी कभार हमें ट्रेड पे डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे टैक्सेस जो होते हैं शिप के, उस पर डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा बहुत अच्छे से क्लियर नहीं, आपकी आवाज इसलिए थोड़ा बहुत समझ आ गया, ठीक बोल रहे हो। कोई और बताओ, और कोई ट्राई करो, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट? जब हम बल्क में सामान बेचते हैं और जो डिस्काउंट देता है उसको ट्रेड हाँ डिस्काउंट बोलते हैं। बिल्कुल ठीक। जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं, जैसे मैंने कहा था ना, एक दुकान से मुझे 400 चेयर चाहिए तो वो कम पैसे लगा देगा। अगर मैं मुझे एक ही चेयर चाहिए तो एक में क्या कम करूँ, ज्यादा लो तो करूँ भी, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट विच वी गेट व्हेन वी परचेज द थिंग्स इन बल्क, एंड कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट विच वी गेट एट द इमीडिएट पेमेंट, ऑन इमीडिएट पेमेंट, है ना। एक तो ये अंतर हो गया, और कोई अंतर है दोनों में? एक और अंतर था, याद है हम किसी? उसको रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ यस,
हम ट्रेड डिस्काउंट को लिखते नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपनी अकाउंटेंसी बुक में, लेकिन कैश डिस्काउंट को अकाउंटेंसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अभी आपको ये चीज थोड़ी सी वो लग रही है कि इसका क्या मतलब है, पर ये न्यूमेरिकल में काम आएगा बेटा, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट, ये जर्नल एंट्रीज के काम की चीज है। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, अच्छा वहां से तो हो गया हमारा। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितने तरीके की होती है? लायबिलिटीज करंट नॉन करंट, करंट और नॉन करंट। अब कोई और बताइए मुझे। पारखी, व्हाट हैपन, यू ज्वाइन लेट? पारखी क्या हुआ बेटा? मैम नेट इश्यू था। हाँ बोलो पारखी। नेट इश्यू। ओके ओके बेटा। अच्छा क्या बता रही थी आपको बच्चे मैं? लायबिलिटी, करंट एंड नॉन करंट। अच्छा करंट लायबिलिटी बताइए कौन सी होती है, एग्जाम्पल दो करंट लायबिलिटी की। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, और कोई दे सकते जैसे हो? मैम हमने कोई लोन लिया हुआ है तो वो हमारी करंट लाइफ। और नॉन करंट की? लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक। हाँ लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक। देखो हम ना करंट की ना और भी लिख सकते हैं करंट लायबिलिटी। एक हो गया क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, आज आपका होमवर्क क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट की डेफिनेशन ढूंढ के रखना क्या होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट के आपको मैंने आज 3 काम दिए हैं, संडे है कल, 3 काम क्या दिए हैं, और पीटीएम भी है आपकी कल, तो पीटीएम अटेंड करनी है आपने कल। आपको 3 टास्क दिए मैंने। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यू हैव टू राइट 3 to 4 लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, और तीसरा काम दिया टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक इट इज पार्ट 4। तो ये तीनों काम रेडी करने, लिख लीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में 3 चीजें लिखी है, एक है क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन। 3 लिख लीजिए करंट लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन। और नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या होगा? करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है? नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखिए बैंक लोन, डिबेंचर्स, शेयर्स। ये क्या है? हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इसको कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, शेयर्स, ये सब हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ठीक है। हाँ जी चलिए अब आगे हम करें, थोड़ा सा शेयर कर लें, खत्म करें चैप्टर को। हाँ जी डिस्काउंट हो गया। अब एक और वर्ड है वाउचर। वाउचर क्या होता है इसको देख लीजिए अच्छे से। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। फॉर एग्जाम्पल देखो आपको क्लियर हो जाएगा। इफ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो। आपको पता है जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हमेशा हमें उसकी कैश की रिसिप्ट लेनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? कैश मेमो। इफ वी बाय ऑन क्रेडिट, अगर हम उधार पे खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है? इनवॉइस। तो याद रखिए कैश मेमो कब मिलता है? जब हम कैश दे के सामान खरीदते हैं, ये एक रसीद होती है। एज अ बायर आपकी ड्यूटी बनती है कि जब भी आप सामान खरीदते हैं आपको कैश मेमो के लिए कहना चाहिए। और अगर उधार पे सामान खरीदते हैं तो किसके लिए कहना चाहिए? इनवॉइस के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ वी बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो। इफ वी बाय ऑन क्रेडिट वी गेट एन इनवॉइस। व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसिप्ट एंड सो ऑन। उसने कहा है कि जब हम कैश देते हैं और सामान खरीदते हैं तो वो हमें कैश की रसीद देता है, उसे बोलते हैं कैश मेमो। और अगर हम उधार पे सामान खरीदते हैं तो वो हमें एक रसीद देता है, उसे बोलते हैं इनवॉइस। और फिर जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो वो हमें एक रिसिप्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि इसने उधार चुका दिया। ये जौन से सारे क्या होते हैं? प्रूफ होते हैं, एविडेंसेस होते हैं। इन सब एविडेंसेस को, कैश मेमो को, इनवॉइस को, रिसिप्ट को क्या बोलते हैं? वाउचर। फाइन। तो वाउचर क्या होते हैं? एविडेंसेस होते हैं, प्रूफ होते हैं कि हमने ये सामान खरीदा है। फिर से देखिए वाउचर्स क्या होते हैं? दीज आर एविडेंसेस कि हमने सामान खरीदा है। उसमें क्या लिखा होगा? डेट लिखी होगी, किससे खरीदा है, कितने का खरीदा है, ये सारी अमाउंट लिखी होती है कैश मेमो में।
आगे आ गया गुड्स. It refers to the products in which the business unit is dealing. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपकी स्टेशनरी की शॉप है तो दुकान में जितना भी सामान आपने बेचना है, आपने डील करना है, वो क्या होता है आपका गुड्स. मैं पढ़ देती हूँ फिर भी. It refers to the products in which the business unit is dealing, that is in terms of which it is buying and selling or producing and selling. प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग, जो चीजें वो खरीदता है बेचने के लिए उन्हें बोलते हैं गुड्स. द आइटम्स दैट आर परचेज फॉर यूज इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स. आपको मैंने ये भी बताया था कि दुकान में जो चीजें हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी, अपने यूज के लिए खरीदी है, उसे गुड्स नहीं बोलते. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ फर्नीचर डीलर, उसने कहा है एक फर्नीचर की दुकान है, परचेज ऑफ चेयर एंड टेबल इज गुड. फर्नीचर की दुकान में जो चेयर एंड टेबल बड़ा है वो गुड्स है, क्योंकि वो बेचने के लिए खड़ा पड़ा है. while for it is furniture and it is while for others it is furniture and is treated as an asset. पर उसने कहा यही अगर चेयर और टेबल स्टेशनरी की दुकान में होगा तो ये चेयर टेबल उसके लिए क्या होगा, एसेट होगा. सिमिलरली फॉर अ स्टेशनरी मर्चेंट स्टेशनरी इज गुड्स. ऐसे ही स्टेशनरी दुकान पे जो भी स्टेशनरी का सामान है गुड है. Whereas for other it is an item of expense. लेकिन दूसरों के लिए वो खर्चा है. जैसे कि फर्नीचर वाला है वो भी तो अपनी दुकान में कॉपी पेन तो रखता होगा ना रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसके लिए कॉपी पेन क्या है, खर्चा है. उसकी एसेट नहीं है. वो एसेट कौन सी चीजें होती हैं जो कि हमें बहुत समय तक यूज करती हैं. कॉपी पेंसिल थोड़ा ना यूज करेगी, कॉपी तो भर जाएगी तो किस काम की हमारी. ठीक है, तो तब वो क्या है, उसका खर्चा है, एक्सपेंसेस है. ठीक. ड्रॉइंग्स है, परचेजेस है, स्टॉक है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है. अच्छा, इसके क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. हाँ जी, अब मुझे यहाँ पे कोई भी बता दीजिए डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं. डेटर्स किसे बोलते हैं, क्रेडिटर्स किसे बोलते हैं? मैम डेटर्स मैम डेटर्स जो जिनको उधार देता है. हाँ सुशांत बताइए. मैम जो उधार देता है. हाँ, वेरी गुड. डेटर्स होता है जिसने हमसे उधार लिया है, वो हमारा डेटर है. और क्रेडिटर है जिसने हमें उधार दिया है. अच्छा, मैंने एक बात बताई थी कि डेटर से कौन से दो वर्ड जुड़े हुए हैं. डेटर से कौन से दो वर्ड्स जुड़े हुए हैं? हाँ जी, डेटर से कौन से दो वर्ड जुड़े हुए हैं? क्रेडिट परचेज. वेरी गुड. नहीं बेटा तनिष्का, गलत. क्रेडिट सेल. क्रेडिट, यस. डेटर से जुड़े हुए दो वर्ड, क्रेडिट सेल. अगर हम उधार पे सामान बेचते हैं तो हमारे डेटर्स ओरिजिनेट होते हैं. और मैंने आपको एक दिन बताया था अगर हमारी पॉलिसी है नो क्रेडिट सेल तो डेटर्स क्या होंगे हमारे, जीरो. yes. तो डेटर्स मतलब क्रेडिट सेल और क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट परचेज. ये चीजें याद रखनी है. अच्छा, इसमें से कौन सी हमारी एसेट है, कौन सी हमारी लाइबिलिटी है? डेटर्स लाइबिलिटी, एसेट. हाँ, डेटर्स एसेट है और डेटर्स हमेशा अच्छे. डेटर्स आर गुड, क्रेडिटर्स आर बैड. बेटा अब देखो आपका पहला चैप्टर हो गया है. इसकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सब आई थिंक वी हैव डन ऑल ऑफ देम. अब रहे इसके क्वेश्चन आंसर. तो जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन आंसर और इसके क्वेश्चन आंसर करने शुरू कर दीजिए व्हेनेवर यू गेट द टाइम. टुडे इट्स आज 25 है ना? 20, हाँ, टिल 27 आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए. आप फिर मुझे पूरा चैप्टर एडोनेक्स में वो डाल देंगे, अटैच कर देंगे पूरा चैप्टर फोटो क्लिक करके. फाइन. मुझे दो या 3 दिन के अंदर, आज देखो 25 है, आज 25, 26, 27, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द 3 days. 28 इज द लास्ट. मुझे हर किसी की कॉपी में पहला चैप्टर चाहिए, क्वेश्चन आंसर. फाइन. जिसके पास डीके गोयल है वो उसके आंसर्स भी लिख सकता है, उसके आंसर्स इजी हैं. बाकी अगर किसी को एनसीईआरटी की लैंग्वेज टिपिकल लगती है तो आप ऑनलाइन इसके आंसर्स डीके गोयल में ढूंढ के उसको लिख लीजिए. अगर एनसीईआरटी ही लिखनी है तो एनसीईआरटी लिख लीजिए. बट आई वांट कॉपी. मुझे पहला चैप्टर चाहिए 28 को आप मुझे भेजेंगे. ठीक है बेटा.
Or Parki, you want to say something, so you can call me at in the evening only. Fine. ठीक है? At what time, ma'am? After 5 you can call me anytime. Okay. ठीक है? हाँ जी. और किसी को कुछ डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी पर्सन वांट टू आस्क, और जो प्लीज रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, प्लीज लिसन केयरफुली, क्लासेस अटेंड कीजिए, अदरवाइज दिस विल बी ग्रेट लॉस फॉर यू. हम दोबारा से थोड़ा ना करेंगे सिलेबस. मैंने आपको पहले ही बताया, एनसीईआरटी फिर से नहीं होगी. जो सेशन में हो गया वो एक एक लाइन नहीं होगी. एक चैप्टर एक दिन में होगा बस. जो हम एक चैप्टर कितने दिनों में कर रहे हैं. हाँ, नो डाउट मैम रिवीजन. 28 को हम व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको? क्या कह रहे हो? 28 को हम व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको, जो हम कर नोटबुक दीजिए, में. व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी चॉइस है. ग्रुप में नहीं, लेकिन फाइन. वैसे इट्स बेटर कि आप उसमें करेंगे एडुनेक्स में, ताकि इट शुड बी विजिबल टू एवरी टीचर इफ एनीबडी वांट्स टू हैव अ लुक. दैट्स व्हाई आई वांट टू से आप मुझे भी कर दीजिए और ग्रुप में भी कर दीजिए, क्योंकि इट शुड बी विजिबल टू अदर्स आल्सो कि दैट द स्टूडेंट्स आर डूइंग द होमवर्क. फाइन. पर आप मुझे पर्सनल भी कर दीजिए, एडुनेक्स. ठीक है, चलिए. एनी डाउट एनीवन? दिस सेशन इज टिल 20. Yes, ma'am. है ना? चलिए, ओके देन. ओके, बाय देन. Bye.